Okay, dear students, as you all know, we have discussed about epithelial tissue and its type. So, what is epithelial tissue? The tissue which is present, skin covering and the covering of organ is epithelial tissue. And this epithelial tissue is further categorized into three types. How many types? Three types. First one is squamous epithelium. Second is cuboidal epithelium, and third is columnar epithelium. Clear to you all? Now, second type of tissue is connective tissue. What? Connective tissue. Now, this connective tissue is further categorized into three types. How many types? Three types. That is connective tissue proper, skeletal tissue and vascular tissue. These three are subcategories of connective tissue, and this connective tissue is the type of animal tissue. Animal tissue is categorized into how many types? Four types. First, epithelial tissue. Second, connective tissue. And third, muscular tissue. And fourth is nervous tissue. Clear? Now, connective tissue is further categorized into three subtypes. First is connective tissue proper. Connective tissue proper. Second, skeletal tissue. Third, vascular tissue. Clear? Now, this connective tissue proper is further categorized into four types. How many types? Four types. That is areolar tissue, adipose tissue, tendon and ligament. These four subcategory of connective tissue proper. Clear? Second, skeletal tissue. Now again, the skeletal tissue is further categorized into two types, cartilage and bone. Cartilage and bones. And third is vascular tissue. And this vascular tissue is further divided into two subtypes, that is blood and lymph. So, connective tissue categorized into how many types? Three types. That is connective tissue proper, skeletal tissue and vascular tissue. Clear? Connective tissue proper further categorized into four different types: areolar tissue, adipose tissue, tendon and ligament. And skeletal tissue further categorized into two subtypes, cartilage and bones. And vascular tissue further categorized into two types, that is blood and lymph. Now we will discuss all these categories one by one. Clear to you all? Now first, connective tissue. Okay, so what is connective tissue? नेम से क्या पता चल रहा है कि किसी के बीच में क्या करना, कनेक्शन बनाना. एपिथेलियल टिश्यू क्या कर रहा था? कवरिंग, है ना, प्रोटेक्शन का काम कर रहा था, एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा था, गैसेस एक्सचेंज का वर्क था. नाउ कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा? एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करने का काम करेगा. क्लियर? जैसे वी आर ईटिंग फूड, ओके, इट इज डाइजेस्टिंग इन एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट होने के बाद ये क्या हो रहा है? एब्सॉर्ब हो रहा है. कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन से. एब्जॉर्प्शन में क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट कहाँ जा रहा है? ब्लड में. ब्लड से कहाँ जा रहा है? होल बॉडी पार्ट में सर्कुलेट हो रहा है. तो ब्लड क्या है? ब्लड क्या है? जो न्यूट्रिशन को, जो हमारे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो न्यूट्रिशन है, उसको हमारे एलिमेंट्री कैनाल से, इंटेस्टाइन से पूरे सेल तक पहुंचा रहा है. तो ब्लड का क्या काम है? यहाँ पे कनेक्शन बनाना. सो ब्लड इज ऑल्सो अ टिश्यू. And which type of tissue? Blood is connective tissue. Clear? So what is connective tissue? It is a connective tissue having a jelly-like matrix. Connective tissue क्या, कैसे मैट्रिक्स होता है उसमें? जो उनमें साइटोप्लाज्म है, जो उनमें मैट्रिक्स मीन साइटोप्लाज्म है, वो कैसा है? जेली लाइक है. क्लियर? मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल्स. किससे बना हुआ है? कॉम्प्लेक्स केमिकल्स से. एंड थ्री टाइप ऑफ फाइबर्स.
और इसके मैट्रिक्स में क्या होते हैं, 3 डिफरेंट टाइप के फाइबर्स होते हैं, जैसे व्हाइट कोलेजन फाइबर, येलो इलास्टिन फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर्स। क्लियर? सो कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कनेक्शन है, ठीक है, जो कनेक्शन करता है, कनेक्ट करता है ऑर्गन्स के बीच में, सेल्स के बीच में। क्लियर? तो इस कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में कैसा है, कैसा इसका मैट्रिक्स होता है, जेली लाइक मैट्रिक्स। कैसा है, जेली लाइक मैट्रिक्स है, जिसमें जो किससे बने हुए हैं, कॉम्प्लेक्स केमिकल से बने हुए हैं। क्लियर? और 3 टाइप के इसमें फाइबर्स होते हैं, कौन कौन से हैं, व्हाइट कोलेजन फाइबर, येलो इलास्टिन फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर। क्लियर टू यू ऑल? नाउ जो इसमें ये सेल्स होते हैं ना, जो कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें क्या है, केमिकल्स है, ठीक है, फाइबर्स है, और साथ में लिविंग सेल्स होते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, वो ये हो सकते हैं, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स हो सकते हैं, प्लाज्मा सेल्स हो सकते हैं, क्लियर, मैक्रोफेजेस हो सकते हैं। सो दीज आर द सेल्स which is present in different categories of connective tissue. Okay, fibroblast, mast cell, plasma cells and macrophages. Fibroblast secretes fibers and matrix. जो fibers है, matrix है, वो कौन secrete कर रहा है, fibroblast. mast cell क्या secrete करते हैं, matrix, anticoagulant. Clear? plasma cell क्या secrete करेंगे, antibody. So this is about connective tissue. Now, as I told you already, that connective tissue is further categorized into 3 different types. And first category is connective tissue proper. What? Connective tissue proper. Clear? So connective tissue proper के further कितने सब category है, कितने सब type है, 4 सब type है. First is areolar tissue. First is areolar tissue. ये areolar tissue क्या है और ये एरियोलर टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है? ओके, सो इट इज अ सिंपल एंड टिपिकल कनेक्टिव टिश्यू हैविंग सेमी फ्लूइड जेली लाइक मैट्रिक्स, व्हाइट कोलेजन फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स। तो ये एरियोलर टिश्यू जो है वो एक ऐसा टिश्यू है जो क्या है, कैसा है, जिसमें कैसा मैट्रिक्स होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है, सेमी फ्लूइड जेली लाइक मैट्रिक्स है, व्हाइट कोलेजन फाइबर प्रेजेंट है, प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट है और मास्ट सेल्स प्रेजेंट है। क्लियर? लोकेशन वेयर एरियोलर टिश्यू इज प्रेजेंट, एरियोलर टिश्यू अकर इनसाइड ऑर्गन्स। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड ऑर्गन्स। एरियोलर टिश्यू इज प्रेजेंट इनसाइड ऑर्गन्स, अराउंड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, मसल्स के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, नर्व के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? एंड बिलो द स्किन एंड ज्वाइनिंग ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर। सो एरियोलर टिश्यू समझ आ गया कि क्या है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू कैसा है, इसकी क्या कंपोजिशन है, इनमें सेमी फ्लूइड जेली लाइक मैट्रिक्स प्रेजेंट है, व्हाइट कोलेजन फाइबर प्रेजेंट है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इस टाइप के टिश्यू कहाँ पर होते हैं, ऑर्गन्स के बीच में, ठीक है, इनसाइड द ऑर्गन्स, इनसाइड द ऑर्गन, अराउंड द ब्लड वेसल्स, जो आर्टरीज एंड वेन्स हैं, अराउंड द ब्लड वेसल जो टिश्यू प्रेजेंट है, दैट इज एरियोलर टिश्यू। ओके, एंड बिलो द स्किन, स्किन के बिलो में जो टिश्यू प्रेजेंट है वो क्या है, एरियोलर टिश्यू है। क्लियर? नाम है ये टिश्यू का, एरियोलर tissue, which is the subcategory of connective tissue proper. Now function, इसका काम क्या है? As I told you that it is present inside the organs, कि एरियोलर टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है, ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है पैकेजिंग का। किस चीज़ का फंक्शन रहता है, पैकेजिंग का। एरियोलर टिश्यू प्रोवाइड द पैकेजिंग मटीरियल, ठीक है, मटीरियल्स को पैकेज करने का काम है।